welcome to the class, and today we will solve exercise 2.6, that is the last exercise of chapter number 2, linear equation in one variable of class 8. So here we have almost same kind of questions that we solved already in the previous exercises. So without any introduction part, directly we will solve the question. And question number 1 is, we have solved the following equations. हमें कुछ इक्वेशंस को यहाँ पर सॉल्व करना है. सो लेट अस सी हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन जो हमारे पास गिवन है, इट इज 8x minus 3 upon 3x is equal to 2. Okay, so now what we will do, here we can see that 3x जो है वो होल एक्सप्रेशन के साथ डिनोमिनेटर में है, डिवाइड में है, तो हम इसे डायरेक्टली ट्रांसपोज कर सकते हैं टू द राइट हैंड साइड. सो इट विल बिकम 8x minus 3 is equal to 2 into 3x. You can write it in the bracket as well. आप इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हो. तो अब जो हमारे पास बचेगा 8x minus 3, 6x, 8x minus 6x. 6x को हमने यहाँ ट्रांसपोज कर लिया. क्यों? वेरिएबल को हमने साथ में ले लिया, राइट? एंड इट विल बी इक्वल टू -3, कॉन्स्टेंट पार्ट है, +3. So 2x is equal to 3 and x will become 3 upon 2. This is the solution of the equation. Now we'll move to second equation, that is 9x upon 7 minus 6x is equal to 15. अब हमारे पास पूरा एक कॉम्बिनेशन है एक्सप्रेशन का, अच्छा खासा कॉम्बिनेशन है इन दी डिनोमिनेटर. सो व्हाट वी विल डू, इक्वेशन कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही ईजी है, बस हमें समझना है यहाँ पर थोड़ा सा. दिस इज इन द डिनोमिनेटर, 9x के साथ ये डिवाइड में है, सो इट विल गेट ट्रांसपोज टू द मल्टीप्लिकेशन. ये ट्रांसपोज हो जाएगी राइट हैंड साइड पर एंड मल्टीप्लाई हो जाएगी. सो व्हाट विल हैपन हियर, 9x इज इक्वल टू 15 इंटू 7 minus 6x. 7 minus 6x will be there, 15 के साथ ये मल्टीप्लिकेशन में होंगे. Now what we will do, 9x is equal to 15 into 7. ये जो 15 ब्रैकेट के बाहर है, completely inside the bracket मल्टीप्लाई होगा. So 15 sevens are 15 6 are 90, 15 sevens are 105 will be there. 105 minus 15 6s are 90 into x. Okay. Now 90x minus है, यहाँ पर अगर प्लस का हो जाएगा, so 9x plus 90x is equal to 105. ऐड कर देते हैं, it will be 99x is equal to 105 and x is equal to 105 upon 90. Now you can see यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे कॉमन फैक्टर्स अभी हमें मिल जाएंगे. तो 5 plus 1 6 and this will be 9 plus 9 18. दोनों ही 3 से डिविजिबल हैं, हम कैंसिल कर देते हैं इसको. तो ये जो हमें यहाँ पर मिलेगा, it will be 3 3s are 9, 3 5s are 15 and 3 1s are 1s are, sorry 3 3s are 33 आएगा यहाँ पे. 3 3s are 9, 3 3s are 9. So x is equal to 35 upon 33 is the solution of this equation. अब हम मूव करते हैं इक्वेशन थर्ड की तरफ, and it is z upon, that means we have a variable that is z. So z upon z plus 15 is equal to 4 upon 9. Now in both LHS as well as RHS हमारे पास कोई ना कोई मतलब we have something in the denominator. हमारे पास डिनोमिनेटर में कुछ है. So what we are going to do is, हम दो स्टेप्स लेने की जगह ट्रांसपोज तो हम करेंगे ही, बट इंस्टेड ऑफ टेकिंग 2 steps हम डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. So z will get multiplied by 9 is equal to, and z plus 15 will get multiplied by 4. So z plus 15. Okay. So it will be 9z, 4 into z, 4z plus 4 15s are, means 15 4s are, it will be 60. Variable constant. So now 9z minus 4z is equal to 60. हमने से ट्रांसपोज किया, प्लस का था, माइनस में ट्रांसपोज किया. It will be 5z is equal to 60. We have to keep in mind that it is z. कभी कभी हम ही को जैसे रैंडमली लिख लेते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि whether it is 52 or 5z. Right? So this thing you keep in mind. Now z is equal to 15 upon 5, और आप ऐसे भी लिख सकते हो उसको 60 upon 5 or 60 divided by 5. So z we will get how many times? 5 12s are, or 12 5s are. So the solution of this equation is 12.
means the variable is 12. Now we'll move to question number 4. चलो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4. दैट इज अगेन वी हैव इक्वेशन एंड फिर हम उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. सो क्वेश्चन नंबर 4, 3y + 4. यहाँ पर जो हमें वेरिएबल देके रखा है इट इज y, है ना. 3y + 4 2 - 6y इज इक्वल टू -2/5. ओके, अब यहाँ पर देखो अगेन वी हैव what we have something in denominator both the side and denominator है that is okay. पर ये जो denominator है डिवाइड में जो नंबर है एक्सप्रेशन है वो पूरे होल न्यूमरेटर के साथ है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम यदि हम उसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो सी व्हाट विल हैपन, 5 विल मल्टीप्लाई हियर, दैट मींस 5 into 3y + 4 is equal to -2 we have and this will multiply here, so 2 - 6y bracket close. Okay, now what we will do, we will open the bracket, we will solve the bracket part first. Okay, 5 3s are 15y plus no sign, that means plus, so plus plus plus, and then 5 4s are 20 is equal to minus plus minus 2 2s are 4, again minus minus plus and 2 6 are 12y. Clear? Now what we will do, constant constant, variable variable. So this is 15y, this is 12y. 15y minus 12y is equal to -4 plus 20, so it will be -20. ट्रांसपोज होने के बाद साइन हमारा चेंज हो गया. नाउ 15 - 12 3y -4 - 20 माइनस माइनस प्लस 20 + 4 24 एंड दैट विल बी इक्वल टू -24 क्योंकि 20 जो एब्सोल्यूट वैल्यू ज्यादा है उसका साइन नेगेटिव है, राइट. y is equal to -24/3 and 3 8s are 24, so y is equal to -8. That means this is the negative integer which is the solution of this equation. इस equation का जो solution है वो एक नेगेटिव इंटीजर है. ओके, अब हम आते हैं इक्वेशन 5 पर. इक्वेशन 5 देख लेते हैं क्या है इक्वेशन 5. ओके, 7y + 4 7y + 4 upon y + 2 is equal to -4/3. 7y + 4 upon y + 2 is equal to -4/3. सेम थिंग वी हैव हियर. यदि मैं इसको थोड़ा सा बड़ा लिख दूं तो ज़्यादा बैलेंसिंग लगेगा. ये डिनोमिनेटर कंप्लीटली न्यूमरेटर के पूरा, यदि ऐसा कुछ होता ना कि सपोज इफ आई एम राइटिंग 7y + 4y + 2 तो हम इसे डायरेक्टली ट्रांसपोज नहीं करते, पर ये कम्प्लीटली डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर के अपॉन में है, मतलब सो कम्प्लीटली डिवीजन में है, हम यहाँ पे ट्रांसपोज कर सकते हैं. 3 विल गेट ट्रांसपोज हियर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं फिर से. 7y + 4 इज इक्वल टू y + 2 विल गो हियर, सो ऑलरेडी हमारे पास -4 है. In multiplication y + 2. Now what we will do, we will open the bracket. 3 7s are 21 into y plus 3 4s are 12. Never forget this thing. हमें क्या करना है, we have to multiply whatever we have outside the bracket completely in the bracket. जो भी bracket के बाहर है that number we have to multiply completely inside. मतलब हमें 7y है तो उससे भी मल्टीप्लाई करना है, 4 से भी मल्टीप्लाई करना है. ओके, नाउ माइनस प्लस माइनस 4 into y 4y माइनस प्लस अगेन माइनस 4 2s are 8. साइन का भी हमें ध्यान रखना है. कांस्टेंट कांस्टेंट वेरिएबल वेरिएबल, सो 21y प्लस 4y इज इक्वल टू -8 ऑलरेडी है, ये ट्रांसपोज होगा -12. सो 21 + 4 इट विल बी 25y is equal to -20. Now what we have y is equal to -20/25. Now you can see we have the common factor 5, right? तो हम डिवाइड कर देंगे. 5 4s are 5 5s are, so we have -4/5. Negative rational number is the solution of this equation. ये एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा छोटी है, ओनली 7 क्वेश्चंस वी हैव, एंड मुझे ऐसा लगता है कि हमने काफ़ी स्पीड से
बाकी के 5 क्वेश्चंस कर लिए हैं, रिमेनिंग 2 वर्ड प्रॉब्लम्स वी हैव, सो दैट ऑल्सो वी विल सॉल्व वेरी सून। ये शायद मुझे ऐसा लगता है सारी मतलब इसमें जितनी भी क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज में, ऑल द क्वेश्चंस आर वेरी इजी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अभी तक के सबसे इजी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हम इससे ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस ऑलरेडी पहले एक्सरसाइजेस में प्रैक्टिस कर चुके हैं, राइट। ठीक है, नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6, एजेस ऑफ हरी एंड हैरी। सेम हम क्या करने वाले हैं, फ्रेमवर्क बनाने वाले हैं। हरी एंड हैरी आर इन द रेशियो 5:7। ठीक है, एज का क्वेश्चन है। हरी और हैरी 2 पर्सन है, 2 बंदे हैं जिनका एजेस का रेशियो है 5:7। 4 years फ्रॉम नाउ, ऑब्वियसली आज से 4 साल बाद, सो 4 years में क्या हो जाएगा, विल टेक समथिंग एंड इट विल बी +4, here also +4। the ratio of their ages, 4 साल बाद इनकी एजेस का रेशियो 3:4 है। we have to find their present ages। अभी तक हमें सिर्फ एक ही रेशियो गिवन होता था, now we have 2 ratios, right। तो सेम थिंग हम अब क्या करने वाले हैं, देखो रेशियो हमने देख लिया है कि हम रेशियो कैसे फॉर्म करते हैं। इट विल बी द सिंपलेस्ट फॉर्म होता है ये 5/7 और इट विल बी 3/4। ये 4 साल बाद का है, ये 4 पहले का है, प्रेजेंट है। तो रेशियोज के लिए हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वी हैव टू टेक अ कॉमन फैक्टर। तो पहले हमें कॉमन फैक्टर ले लेते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। लेट द कॉमन फैक्टर, अब देखो हमारे पास ये 2 कॉमन फैक्टर हो सकते हैं बिकॉज हमें 2 रेशियो देने हैं, तो हम अभी किसका ले रहे हैं, प्रेजेंट एजेस का। सो विल राइट लेट द कॉमन फैक्टर ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, कितना हो गया, bx। तो यहां से हमें हरीज प्रेजेंट एज जो मिलेगी, हरीज प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, इट विल बी और वुड बी, यू कैन राइट 5x एंड हैरीज प्रेजेंट एज, हैरीज प्रेजेंट एज वुड बी, आई राइट वुड बी 7x। ये हमें 2 प्रेजेंट एजेस उनकी मिल गई हैं। अब देखो, अब उन्होंने बात की है 4 साल बाद की, सो 4 years फ्रॉम नाउ आई राइट 4 years, 4 years फ्रॉम नाउ, 4 years फ्रॉम नाउ हरीज एज, फर्स्ट आई राइट हरीज एज कितनी हो जाएगी, 5x + 4 एंड देन हैरीज एज, इट वुड बी 7x + 4 हमने ऐड कर दिया। तो 4 साल बाद जो इनकी एजेस थी दैट वी गॉट। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें एक चीज ऑलरेडी गिवन है क्या, कि इसकी 4 साल बाद इन दोनों की जो एजेस का रेशियो होगा वो 3:4 होगा, मतलब वो 3/4 के टर्म्स में होगा। तो यहाँ पर हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एटी क्यों लिख रही हूँ मैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ratio of their ages after 4 years, कितना है, 3:4 it was, let me confirm 3:4, 3:4 और 3/4। this implies that यदि हम इनका रेशियो लेंगे, जो एजेस हमें पता है, यदि इनका रेशियो लें, मतलब 5x + 4 upon 7x + 4 is equal to 3/4. Now we have an equation and we have to solve it. Same thing, cross multiplication we will do here. So 4 will get multiplied by this equation. It will be giving you is equal to 3 into 7x + 4 will multiply by this. Right? अब हम multiply करते हैं, 4 5s are 20x plus 4 4s are 16. 3 7s are 21x plus 3 4s are 12. Constant, variable. So 20x minus 21x is equal to 12 minus 16. If we will solve this, what you will get, minus x is equal to 12 minus 16, so it will be -4. Now you see x यहाँ पर नेगेटिव में है, मतलब ये -1 है। -x का मतलब होता है -1 into x.
ओके, सो ये -1 शिफ्ट हो जाएगा, -4 अपॉन -1 एंड x इज इक्वल टू 4। माइनस माइनस कैंसिल कर दो, और या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि हमने -1 का मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में। सो -4 इंटू -1 4 एंड -1 इंटू 1 विच विल बी इक्वल टू 1, सो दैट आई हैव नॉट रिटन। x की वैल्यू हमें मिल गई है यहाँ पर 4। क्वेश्चन था कि हमें उनकी प्रेजेंट एजेस फाइंड आउट करने हैं। तो प्रेजेंट एज जो थी हमारे पास इट वॉज 5x एंड 7x। तो अब क्या हो जाएंगी, प्रेजेंट एज हमारे पास हो गई 5 इंटू 4 दैट इज 20 एंड 7 इंटू 4 सो 28, 7 4 सा 28। ये हो गई हमारे पास एज हरी की एंड इट वॉज ऑफ हिम। सो दिस वॉज द आंसर। 20 ईयर्स आपको मेंशन करना है वहाँ पर, 20 ईयर्स एंड 28 ईयर्स। ओके, चलो नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं हम क्या है, ये रैशनल नंबर से रिलेटेड है। रैशनल नंबर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन चैप्टर 1। वो नंबर जो p अपॉन q के फॉर्म में लिखे जाते हैं, मीन्स दे हैव समथिंग इन डिनोमिनेटर एज वेल, ठीक है, उनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज the denominator of a rational number is greater than its numerator by 8। ठीक है, एक रैशनल नंबर है p अपॉन q, पर यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, अब अभी इसे बस ऐसे ही समझ रहे हैं कि हमारे पास रैशनल नंबर है, मतलब उसका कुछ न्यूमरेटर है और कुछ डिनोमिनेटर है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है इट इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर से बड़ा है। कितना बड़ा है, बाय 8। मतलब यदि क्वेश्चन मार्क उसका न्यूमरेटर है तो उस क्वेश्चन मार्क में 8 ऐड करने पर डिनोमिनेटर बन जाएगा। इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17, न्यूमरेटर में 17 से इंक्रीज कर दो, इज इंक्रीज बाय 17 एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1। डिनोमिनेटर कितना है, +8, इसको 1 से डिक्रीज कर दो, -1 कर दिया, जो हमें नंबर मिलेगा वो होगा 3/8। वी विल गेट 3/2 और 3/2 वी विल गेट। वी हैव टू फाइंड आउट द रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होगा हमें ये बताना है। सो नाउ व्हाट वी विल डू हियर, वी हैव एन अननोन क्वांटिटी, और वो जो अननोन क्वांटिटी है दैट वी विल टेक x। ठीक है, हम उसको कंसिडर कर लेंगे x, या y ऑल्सो वी कैन टेक, y लेते चलो हम। सो दिस विल बी y, मतलब न्यूमरेटर y है, डिनोमिनेटर y + 8 है। यदि न्यूमरेटर में 17 ऐड कर दें और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें 3/2 मिलेगा। पूरी एक कंप्लीट इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगी एंड वी विल सॉल्व दैट इक्वेशन। सो लेट अस राइट, लेट क्या लिखेंगे सबसे पहले, न्यूमरेटर ऑफ रैशनल नंबर, q से रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए मैंने यहाँ ऐसा लिख दिया, लाइक द न्यूमरेटर ऑफ रैशनल नंबर, गिवन रैशनल नंबर बी y। सो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा इसका, डिनोमिनेटर विल बी y + 8। 8 से बड़ा है तो 8 वी विल ऐड। दिस इंप्लाइज दैट रैशनल नंबर इज, क्या बन गया रैशनल नंबर, y अपॉन y + 8। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं हम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि हम न्यूमरेटर में 17 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर जो कि y + 8 है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें मिलेगा 3/2। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि हम यहाँ पे दो कांस्टेंट है हमारे पास, सॉल्व कर सकते हैं। y + 17, y + 8 - 1, so 7 is equal to 3/2। You have to write it completely ऐसे लिखें। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 will get multiplied here, 3 will get multiplied with this thing। So 2 into y + 17 is equal to 3 into y + 7। करते हैं सॉल्व, 2 into y 2y plus 17 2s are 34 is equal to 3 into y 3y plus 3 7s are 21। constant constant, variable variable, so 2y minus 3y is equal to 21 minus 34। this we will get। ठीक है, हम चेंज भी कर सकते थे, 2y को इस तरफ ले जाते, 21 को इस तरफ ट्रांसपोज करते थे,
both the methods you can use. यहाँ सर क्या हो रहा है कि हमें नेगेटिव में y मिल रहा है अभी फिलहाल. 21 minus 34, 4 minus 1 3, 3 minus 2 1 minus 13. बस सेम चीज़ जो पहले क्वेश्चन में हुई थी. y will be equal to minus 13 upon minus 1, so it will be plus 13. y की वैल्यू 13 मिली है. इसका मतलब ये नहीं है कि हमें रैशनल नंबर 13 मिला है. इट इज जस्ट द वैल्यू. रैशनल नंबर हमारा क्या है? y अपॉन y प्लस 8, राइट? सो y इज 13, y प्लस 8 21. दिस इज द रैशनल नंबर वी हैव. क्लियर? अब आप इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हो. हमने प्लस 17 किया, माइनस 1, 13 प्लस 17 30, माइनस 1 20, 0 0 cancel out, we will get 3 1 2. So this is the cross checking of this question, and here we completed exercise 2.6 along with the chapter 2 linear equation in one variable.